بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں عمر ستی۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کے علاقائی ہیڈ لائنز پر۔ جنگ پولیس نے ایک نومولود بچے کو ہلاک کر دیا۔ پولیس نے کسی مجرم کو گرفتار کرنے کے لیے ریڈ خواتین اور بچوں پر کی، جس میں ایک نومولود بچے کو ہلاک کر دیا۔ ڈی پی او اکاڑہ فیصل گلزار کی زیر قیادت منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ 1 کلو سے زائد گرام چرس برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ہارون آباد میں وزیر اعظم کی نیا پاکستان اسکیم کے نام پر فراڈ کا انکشاف۔ چیپ ہومز کمپنی نے نیا پاکستان اسکیم پر کام دینے کے عوض لاکھوں روپے سیکورٹی وصول کی۔ متاثرہ ٹھیکیداران اور مزدوروں کا کمپنی مالکان کے خلاف شدید احتجاج۔ پتو کی سراں اڈہ کے قریب موٹر سائیکل اور ٹرالر میں خوفناک تصادم۔ حادثے میں ماں، بیٹی اور بیٹے سمیت ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق۔ ریسکیو ٹیم نے جاں بحق ہونے والوں کی لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ رینالہ خود کے نواحی علاقے اخترابات میں الشفا ٹرسٹ اسپتال کے زیر اہتمام فری جنرل میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ ملک کے مایہ ناز ڈاکٹروں نے سینکڑوں مریضوں کا مفت چیک اپ کر کے ادویات فراہم کی۔ یونیورسٹی آف اکاڑہ میں ڈائریکٹریٹ اسٹوڈنٹس افیئرز کی جانب سے سیمینار کا انعقاد۔ سیمینار میں طلبہ و طالبات نے تقاریر کی اور کرپشن پر ڈرامہ پیش کیا۔ آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف کے گدی نشین نے مسلم نور میں شمولیت کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈسٹرکٹ پولیس افسر نجیب الرحمان عبادتی پروگرام کے سلسلے میں خصوصی ہدایت۔ چرچ، ہائے و مسیحی عبادت گاہوں پر ضلع بھر میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے۔ شور کوٹ بیت الذکر روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ سڑک ٹوٹنے کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ ٹریفک حادثات کی وجہ سے ہر سال ہزاروں لوگ اپنی زندگیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ملتان اسسٹنٹ سب انسپکٹر رؤف حسن کا شہریوں کو حادثات سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم کا آغاز۔ اکاڑہ میں چینی آٹا کی طرح یوریا کھاد بھی نایاب۔ کسانوں کی یوریا کھاد کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش۔ بلدیہ گوجرا کی بڑی نااہلی۔ گوجرا جنرل بس اسٹینڈ کا بجلی کنیکشن عدم ادائیگی کی وجہ سے پچھلے 5 ماہ سے منقطع ہے۔ اکاڑہ میں جعلی اور عطائی ڈاکٹر سید حسنین شاہ اور اس کے بیٹوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نوسرباز اور چور خواتین کا گروپ دیپال پور بھی پہنچ گیا۔ چور خواتین نے شاپنگ مال سے کپڑے چرا لیے۔ نیوز آئی نے چوری کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ شور کو THQ اسپتال میں 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز۔ پولیو مہم 13 سے 17 دسمبر تک جاری رہے گی۔ خانے وال عوام نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کا بانڈا پھوڑ دیا۔ ووٹ خریدنے کا الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا۔ اکاڑہ یونیورسٹی میں انسانی حقوق کے تحفظ کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ رینالہ خود میں تحصیل بھر میں پولیو فری 5 روزہ مہم کا آج سے آغاز ہوگا۔ تحصیل بھر میں 301 ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ سیکرٹری معدنیات پنجاب عامر اعجاز اکبر کا کوٹلی لوہارا اسپتال کا اچانک دورہ۔ ڈاکٹر ولید ناصر چودھری، MS ڈاکٹر شاہد اقبال اور دیگر نے استقبال کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، تفصیلات شامل کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
खबरों में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि जंग पुलिस ने एक नौमौलूद बच्चे को हिलाक कर दिया। जंग थाना मोचीवाला के इलाके चकडाब वाला थाना नया लाहौर की पुलिस ने किसी मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए रेड की। खवातीन और बच्चों पर रेड करके एक नौमौलूद बच्चे को हिलाक कर दिया, जिस पर अहलियाने इलाका ने गोजरा मोड़ पर रोड ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और कई घंटों तक रोड ब्लॉक की, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गई। थाना मोचीवाला की पुलिस मौके पर पहुंच गई। डीपीओ काड़ा फैसल गुलजार की हिदायत पर थाना सदर नाला खुद SHO मोहम्मद एजाज की ज़ेर निगरानी ASI मोहम्मद इकबाल की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मुश्ताक नामी मुलजिम से 1 किलो से ज़ायद ग्राम चरस बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। हारूनाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की स्कीम नया पाकिस्तान के नाम पर घर बनाने का झांसा देते हुए फराडिये ग्रोह ने सिक्योरिटी के नाम मुकामी ठेकेदारों को लूट लिया। ताहाल रकम अदा नहीं की। मुतासरा ठेकेदारों और मजदूरों ने चीफ होम्स कंपनी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर ठेकेदार आदिल बशीर, नसीर अहमद, शमशेर अली, महमूद अहमद, असद और दीगर का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नया पाकिस्तान स्कीम के तहत घर बनाने का झांसा देकर चीफ होम्स कंपनी मालकान ने ठेकेदारों से 4 लाख रुपए सिक्योरिटी ली और नवाही गांव चक 74 4R में नेचर होम्स कॉलोनी में 5 मरले के मकानात बनवाने शुरू करवाए। 11 माह का अरसा गुजर चुका, लेकिन मज़कूरा कंपनी के मालकान ना सिक्योरिटी वापस कर रही है और ना ही हमारे मटेरियल बिल जो कि 30 लाख रुपए से ज़ायद बनते हैं, जो कि सरासर जुल्म और ज्यादती का मुतरादिफ है। मज़कूरा कंपनी पूरे पंजाब में लोगों को लूट रही है। एहतजाज में शरीक शुरका ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर हाउसिंग स्कीम से मुतालबा किया है कि नया पाकिस्तान स्कीम का झांसा देकर आम शहरियों को लूटने वालों के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाए और हमारी रकम वापस दिलवा कर हमें इंसाफ दिलाया जाए। पत्तों की मुल्तान रोड पर सना अड्डे के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक का हादसा पेश आया, जहां एक ही खानदान के 5 अफराद मोटरसाइकिल पर सवार होकर लाहौर से उकाड़ा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार ट्रॉलर को क्रॉस करने की कोशिश में थे कि अचानक मोटरसाइकिल बेकाबू होकर ट्रॉलर के नीचे घुस गई, जिसके बायस 35 साला माँ आबिदा बीबी, 18 साला बेटा इमरान और 4 साला बेटी आमना मौके पर ही जाम हो गई, जबकि 2 अफराद मौज़ाना तौर पर महफूज रहे। हादसे का शिकार होने वाली फैमिली का ताल्लुक दीपालपुर से बताया जा रहा है। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 टीमें मौके पर पहुंच गई और जाँ बाग होने वालों के नाशों को ट्रॉमा सेंटर फूल नगर मुंतकिल कर दिया गया। रेनारा खुद के नवाही इलाके अख्तराबाद में अल-शिफा ट्रस्ट अस्पताल के ज़ेर एहतमाम फ्री जनरल मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके भर से सैकड़ों की तादाद में मरीजों ने शिरकत की। मुख्तलिफ शोबा जात के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिनमें जनरल सर्जन, आर्थोपैडिक, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट ने सैकड़ों मरीजों का मुफ्त चेकअप किया और अद्वियात भी फराहम की। इस मौके पर मरीजों का कहना था कि अल-शिफा ट्रस्ट अस्पताल इलाके भर के लिए किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ पर मुस्तहिक लोगों को हर तरह के इलाज की मुफ्त सहूलियात फराहम की जाती हैं। अल-शिफा ट्रस्ट अस्पताल के चेयरमैन हाजी नूर हसन का कहना था कि अपनी ज़िंदगी मखलूक खुदा की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी है। बहुत जल्द अस्पताल में डायलिसिस की भी मुफ्त सहूलियत फराहम करने का इरादा रखते हैं। मज़ीद ये कि हर 2 हफ्ते बाद इसी तरह मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए फ्री कैंप का इनेकाद किया जाएगा। फ्री कैंप में सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी समेत हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में बदउनवानी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टरेट स्टूडेंट्स अफेयर्स डॉक्टर शोएब सलीम, सरबराह शोबा बलगियात डॉक्टर मोहम्मद जाहिद बिलाल, सरबराह शोबा टीचर एजुकेशन डॉक्टर खालिद सलीम, सरबराह शोबा इंग्लिश डॉक्टर मोहम्मद आमिर, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश डॉक्टर फरग अब्बास, सरबराह शोबा एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट डॉक्टर मोहम्मद शहजाद, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर राना जावेद रशीद, सदर UO मीडिया तासीर हैदर, सदर करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी उमर बिन अब्दुल अजीज समेत तलबा और तलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने करप्शन की संगीनी पर अपना नुक्ता नज़र पेश किया और इसके सदेबात के लिए तजावीज़ भी पेश की। आस्ताना आलिया हज़रत करमावाला शरीफ के गद्दी नशीन पीर सैयद मीर तैयब अली शाह का पूरे पाकिस्तान के मुरीदीन समेत मुस्लिमीन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तमाम मुरीदीन आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिमीन को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिमीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर काम करेगी तो इसको सपोर्ट किया जाएगा। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुरीदीन मौजूद हैं वो पाकिस्तान मुस्लिमीन को सपोर्ट करेंगे। पीर सैयद मीर तैयब अली शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई वज़ीर सैयद शमसाम अली शाह बुखारी के छोटे भाई हैं।
टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नजीब रहमान ने इबादती प्रोग्राम के सिलसिले में खुसूसी हिदायत की। जिला भर में 72 चर्च हाई पर 265 अफसरान और मुलाजमान ने ड्यूटी सर अंजाम दी। इबादती प्रोग्राम में शामिल होने वाले हर शख्स को गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह को मुकम्मल चेकिंग के बाद आने दिया जाएगा। इसके अलावा चेकिंग के लिए अहम पॉइंट्स पर वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर का भी इस्तेमाल किया गया। चर्च हाई पर CCTV कैमरा जांच से भी मॉनिटरिंग की गई। इबादत गाहों में औरतों की शिरकत के हवाले से लेडीज़ पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई। चर्च और मसीही इबादत गाहों पर पार्किंग का मुनासिब इंतज़ाम किया गया। DPO टोबा नजीब रहमान ने SHOs और सर्कल अफसरान को लगाई गई ड्यूटी को बार बार चेक करने, ड्यूटी बारे ब्रीफ करने और मुलाजमीन में पुलिस को अलर्ट होकर ड्यूटी सरंजाम देने की हिदायत दी। शोरकोट बैतुल जिक्र रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क टूटने की वजह से यहां से गुजरने वाले शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी सड़क से गुजरकर बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते हैं। सड़क टूटने की वजह से हादसा भी मामूल बन चुके हैं। बारिश के मौसम में होने वाले नमाजियों को मस्जिद जाने में भी दुश्वारी का सामना होता है। अवामी हलकों ने आला हुकाम से जल्द अज जल्द तामीर करने का मुतालबा किया है। आगे बढ़िए आपको बताएं कि ट्रैफिक हादसा की वजह से हर साल लाखों अफराद अपनी जान की बाजी हार देते हैं। मुल्तान असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रऊफ हसन का शहरियों को हादसा से बचाव के लिए आगाही मुहिम का आगाज। धुंध स्मोक सीजन में अपनी गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर लाजमी लगाएं। हेडलाइट पर येलो पट्टी भी लाजमी लगाएं। रोड पर चलने वाली दूसरी गाड़ियों के साथ मुकाबलाबाजी से गुरेज करें और बार बार लेन तब्दील करने के बजाय अपनी लेन में रहें, ताकि किसी भी किस्म की हादसे की सूरत में पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन 11224 पर इत्तला जरूर दें। ट्रैफिक कानून से आगाही के मुतालिक पॉम्पलेट भी तकसीम किए। उकाड़ा में चीनी आटा की तरह यूरिया खाद भी नायाब हो गई। किसानों की यूरिया खाद के उसूल के लिए एक दूसरे पर थप्पड़ और मुक्कों की बारिश। उकाड़ा की तहसील दीपालपुर में यूरिया खाद नायाब। किसान यूरिया खाद के एक बोरी को तरस के दीपालपुर में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद के उसूल के लिए लाइनों में लगे किसान आपस में दस्तगिरबां हो गए और एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश करने लगे। अगर खाद की सूरत हाल ऐसी ही रही तो काश्तकारों की फसलों को शदीद नुकसान का खदशा है, क्योंकि यह इब्तदाई मरहला फसलों की ग्रोथ का होता है। पौधे को सरसब्ज शदाब रखने के लिए यूरिया खाद की अशद जरूरत होती है। इसी तरह खाद के उसूल के लिए लाइनों में लगकर 1-2 बोरियां मिलती हैं, तो फसलों की जरूरियात को कैसे पूरा करेंगे? जिम्मेदार हमारे मुल्क की माशी जरूरियात को पूरा करता है। किसान जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, इससे बड़ी किसान की तस्वीर क्या होगी जिसको 200-400 बोरी एक ही वक्त में चाहिए। इसे 2 बोरियां इसी के पैसों से ऐसे मिल रही है जैसे भीख वसूल कर रहा है। किसान गरीब ने ये खाद खुद नहीं खानी बल्कि मुल्क को कौम के खाने के लिए इस्तेमाल करनी है। गोजरा जनरल बस स्टैंड का बिजली कनेक्शन अदम अदायगी की वजह से पिछले 5 माह से मुनक़ता है, जिससे रात के वक्त मुसाफिर अंधेरे में खुवार होने लगे। बल्कि संगीन हालात में अंधेरे की वजह से जनरल बस स्टैंड में नाखुशगवार वाक़े रुनमा हो सकते हैं। बिजली कनेक्शन मुनक़ते होने से सिक्योरिटी कैमरे भी बंद पड़े हैं। वीडियो में देखा जा सकता है मुसाफिर बसें अंधेरे में खड़ी हैं, मगर मुसाफिर बसों गोजरा शहर में 2 बार टैक्स पर्ची ले जा रही है। फी बस एक पर्ची टूल टैक्स के नाम पर 50 रुपये, दूसरी पर्ची अड्डा फीस के नाम पर 60 रुपये वसूल किया जा रहा है। ये शायद पूरे पाकिस्तान में गोजरा वाहिद शहर है। अंदरूनी शहर मुसाफिर बसों वैगनों से 2 बार टैक्स वसूल किया जा रहा है। इसी तरह रोजाना लाखों रुपए मुसाफिर बसों से वसूल किए जा रहे हैं, मगर पिछले 5 माह से जनरल बस स्टैंड का बिजली कनेक्शन अदम अदायगी की वजह से मुनक़ता है, जिससे लारी अड्डा की लाइटिंग और सिक्योरिटी सिस्टम बंद है। इसके अलावा भी गोजरा लारी अड्डा में सहूलत नाम के कोई चीज़ नहीं। उकाड़ा के नवाही गांव 56 GD में अताई डॉक्टर सैयद हसनैन शाह ने महकमा हेल्थ के मुलाजमीन से मिली भगत करके अपना प्राइवेट क्लिनिक गैर कानूनी चला रहा था, जहां पर वो रोजाना की बुनियाद पर इंसानी जिंदगी से मौत का खेलने में मसरूफ अमल था। कुछ मुकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर वाजिद अली शाह को इस अताई डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक को बंद करने के लिए दरख्वास्त गुजारी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर वाजिद अली शाह ने CEO हेल्थ को कार्रवाई करने से अहकाम जारी किए गए। तो महकमा हेल्थ ने इताई डॉक्टर सैयद हसनैन शाह के प्राइवेट क्लिनिक को सील तो किया, मगर चंद ही दिनों बाद इताई डॉक्टर ने सरकारी सीलें तोड़कर दोबारा काम शुरू कर दिया था, जिस पर मुकामी लोगों ने इताई डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए पटिशन दायर की, जिस पर एडिशनल एंड सेशन जज मनीर हसन गुल ने सैयद हसनैन शाह और इसके बेटियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ प्राइवेट क्लिनिक को फौरी सील करने के अहकाम CEO हेल्थ को जारी कर दिए। इताई डॉक्टर हसनैन शाह से इस मामले पर मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो इताई डॉक्टर ने मौक़िफ़ देने पर खामोशी इख्तियार कर ली।
नौसरबाज और चोर खवातीन का ग्रुप दीपालपुर पहुंच गया। चोर खवातीन ने शॉपिंग मॉल से कपड़े चुरा लिए। न्यूज आई ने चोर की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। मुख्तलिफ शहरों के बाद दीपालपुर में भी चोर खवातीन का ग्रुप सामने आ गया। ओकाड़ा रोड पर पैसिफिक शॉपिंग मॉल में नौसरबाज और चोर खवातीन दाखिल हुई और बड़ी दीदा दलेरी से कीमती कपड़े चोरी कर लिए। न्यूज आई ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि चोर खवातीन किस तरह चालाकी के साथ कपड़े चोरी कर रही हैं और वारदात करने के बाद खवातीन होशियारी के साथ रफू चक्कर हो गई। अहले इलाका और इंजमन ताजदार ने फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। शोरकोट THQ अस्पताल में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक THQ अस्पताल में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का असिस्टेंट कमिश्नर फैजल अब्बास ने इफ्ताह किया। इस मौके पर MS THQ अस्पताल डॉक्टर नवीद सफ्तर, डॉक्टर मोहम्मद हाशिर के अलावा महकमा सेहत का दीगर अमला भी मौजूद था। पोलियो मुहिम 13 से 17 दिसंबर तक जारी रहेगी। तहसील भर में 5 साल से कम उम्र के 95,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट मुकम्मल किया जाएगा। खानेवाल में अवाम ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का भांडा फोड़ दिया। वोट खरीदने का इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। ज़मीनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने वोट की सरेआम कीमत लगा दी। 2000 लो और पीपल्स पार्टी को वोट दो। लूट सेल जारी। 2000 लेने वाले को वोट देने के लिए कुरान पाक पर मुबैना तौर पर हल्फ भी देना पड़ेगा। गरीब खवातीन की पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की रिहाइशगाह के सामने लाइन लग गई। हमने कुरान पाक पर हल्फ नहीं देना, चंद खवातीन का मौक़िफ़ सामने आ गया। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ कानूनगार सलमान आबिद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की मौजूदा सूरत हाल और इस हवाले से मीडिया और तालीमी इदारों के किरदार के हवाले से एक लेक्चर दिया। सेमिनार से खिताब करते हुए शोबा बलागियात के सरबराह डॉक्टर ज़ाहिर बिलाल का कहना था कि पाकिस्तान में हर सतह पर मुसावी तालीम की फराहमी के बगैर इंसानी हुकूक़ के मसाइल हल नहीं किए जा सकते। डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स डॉक्टर शोएब सलीम ने इंसानी हुकूक़ के मसाइल हल करने के लिए नौजवान नस्ल की आगही और इनको बाख्तियार बनाने की अहमियत पर जोर दिया। सेमिनार से शोबा उलूम इस्लामिया के सरबराह डॉक्टर अब्दुल गफ्फार और शोबा उर्दू के सरबराह डॉक्टर सुमेरा एजाज ने भी खिताब किया। नालाखोर तहसील भर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। तहसील भर में 301 टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। तहसील भर में 67,819 बच्चों को 5 रोज़ा पोलियो मुहिम में कतरे पिलाए जाएंगे। बच्चे की पैदाइश से लेकर 5 साल की उम्र तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तहसील भर में बस अड्डों चौराहों पर पोलियो टीमें तैनात की गई हैं। पुलिस की तरफ से पोलियो टीमों के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। तहसील में काम करने वाली टीमों को मॉनिटर करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर नालाखोद कमर खान मंच की सरबराही में इमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया गया। सेक्रेटरी मादनियात पंजाब आमिर एजाज का कोटली लोहार अस्पताल का अचानक दौरा। डॉक्टर वलीद नासिर चौधरी, MS डॉक्टर शाहिद इकबाल और दीगर ने इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान सेक्रेटरी मादनियात पंजाब आमिर एजाज अकबर ने OPD और स्टाफ रजिस्टर्ड की चेकिंग की और सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब बिलखुसूस और हुकूमत पाकिस्तान बिलूम तमाम अस्पतालों में बेहतरी लाने और कोरोना और डेंगू से वबा से निपटने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूएकार लाने में मसरूफ़ अमल हैं। MS शाहिद इकबाल ने मरीजों की देखभाल और सफाई सुथराई और अस्पताल के मामले को पेशा वराना जिम्मेदारियों की अदायगी के बारे में ब्रीफ किया। न्यूज़ आई से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई।